when Mr. Modi came into power in 2014, we did a forensic audit of the organizations and non-governmental organizations, and more specifically, which were having the FCRA license and enjoying the funds from the various parts of the country. You will be surprised that 20,000 plus organizations, they were using the money which they were getting for anti-India activities. So just to cut the strings a little more, that the process and procedures were made deliberately a little more I should say the tough or stringent, I should say. But I think in the time coming, this issue is going to be resolved so easily. And as the digitization is getting up in India day by day, it's increasing every year. These small bureaucratic hurdles and all, they are going to be becoming straight. As far as the strategic and other alliances in other areas are concerned, today only while having lunch we had a long and great discussion with the ambassador. There are many areas where India and United States are working, and the companies of both the countries are working together. Been here 33 years, Embassy of India in the last 8 years, this place has become a community engagement place. That has changed the outlook of US and India relationship as people residing here. So thank you for doing that community engagement and inviting the people here. Professionally, been here in a business relationship for many years. I was invited when President Obama visited to India, engaged with the US IBC, connecting the people, the business group from here to there. Just currently, I never thought on the aspect of the Jal water resources. We just launched a project called Free the Earth. That's a new one, which is more focused on renewable energy, solar, green hydrogen, biofuels. So we connecting and bringing a relationship with the US to India. There's a manufacturer in India, which is a solar power manufacturer. They're setting up the unit here, and same way vice versa, we connect with that. एक टाइम था कि हमारा हिंदुस्तान जो है फूड डेफिसिट कंट्री था। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में ही उन्होंने देश को आह्वान किया था कि सप्ताह में एक दिन सबको फास्ट करना चाहिए, ताकि बाकी सब लोगों को भोजन मिल सके और हमको अपने लोगों का पेट भरने के लिए मैक्सिको से और ऑस्ट्रेलिया से और यूएस से गेहूं और इंपोर्ट करना पड़ता है। आज ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में हिंदुस्तान फूड सफिशिएंट हुआ, फूड सरप्लस हो गया और अब एग्रीकल्चर पावर हाउस बन गया। पूरी दुनिया को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम दुनिया के सबसे बड़े फूड ग्रेन्स ग्रोअर हैं, दुनिया के सबसे बड़े पल्सेस के ग्रोअर हैं, दुनिया के सबसे बड़े ऑयल सीड के ग्रोअर हैं, दुनिया के सबसे बड़े कॉटन प्रोड्यूसर हैं, दुनिया के सबसे बड़े शुगर प्रोड्यूसर हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर हैं, दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मीट एंड एक्सपोर्टर हैं, श्रिम्प के एक्सपोर्टर हैं सेकंड लार्जेस्ट, हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाने वाले देश हैं। बनारस में कुछ वर्ष पहले तक उन घाटों को आप नहाने भी तो छोड़े, बस पानी को टच करने में भी डरता था, लेकिन आज मैं अभी 4-6 महीने पहले गया हूँ और मैं नहाया आराम से। मैं कुंभ में भी गया था और मैंने कुंभ में भी डुबकी मारी, तो बहुत गर्व की बात है। बट ये उन शॉर्ट पॉइंट पे आने के लिए अटल जी के टाइम में जो भारत में नदियां हैं, रिवर्स, उनको आपस में जोड़ने का बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद भी जो सरकारें आई दूसरी पार्टी की, उन्होंने उनको रोका कि बहुत से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उसमें,
और मुझे लगता है कि वो प्रोग्राम फिर शुरू हुए हैं आपके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो आप थोड़ा उस पर और बड़ा डिटेल दें कि नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम कैसे चल रहा है, और जो चैलेंजेस पिछली सरकार ने बताई थी भूमि क्षरण की, या जो मछलियों का उत्पादन होता है वो सब बिगड़ जाएगा, और नदियाँ हर 70-80 साल पे अपनी दिशा बदलती हैं, तो उससे उनको जोड़ना बहुत मुश्किल है। तो उन पे आप, उन चुनौतियों को आपने कैसे पूरा किया, उस पर कैसा काम चल रहा है? धन्यवाद। मैंने इसलिए पूछा था कि आप बनारस आखिर में कब गए थे, कि मैं कहा आपने जो है काशी कॉरिडोर कब देखा है कि नहीं देखा है जाने के बाद। देखिए, माननीय अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इस बात की चर्चा शुरू की थी कि हिंदुस्तान में जो सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी ट्रांसफर करने के लिए वाटर ग्रिड बनाना चाहिए। इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स की जो चर्चा उस समय हुई थी, बहुत कुछ काम उस समय नहीं हो पाया, सिर्फ चर्चा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर आदेश किया था, एक कमेटी बनी थी, कुछ थियोरेटिकल काम उन्होंने किया था, नक्शे पर कुछ लिंक्स आइडेंटिफाई किए थे, लेकिन बाद में बीच में 10 साल की सरकार ने उसको शेल्व कर दिया था, उसमें कोई काम नहीं। 2015-16 से वापस उस पर काम करना शुरू किया। हिंदुस्तान में लगभग 15-16% हिस्सा ऐसा होता है जहां हर साल बाढ़ आती है, और लगभग इतना ही हिस्सा ऐसा होता है जिसमें हर साल सूखा पड़ता है। 5 साल में से 4 साल सूखा पड़ता है। इसलिए आइडियली ये करना कि पानी जो है सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में ले आए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ऐसे कुल मिलाकर के 31 लिंक्स आइडेंटिफाई किए गए। उनको आइडेंटिफाई करके उनकी पहले प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाई, बाद में मोस्ट ऑफ देम सबकी लगभग डीपीआर भी बना दी। और मैं राजस्थली से हूँ, जन्म मेरा जोधपुर में हुआ था, और मैं अभी पिछले महीने ही वापस लौटी हूँ राजस्थान से, और हम एक छोटे रिसोर्ट में गए थे, खीवसर करके है नागौर के पास में, और आई वॉज बियॉन्ड वर्ड्स थ्रिल्ड टू सी कितना प्रोग्रेस हुआ है। जहाँ जो वहाँ की हॉस्पिटैलिटी थी, जितना सुंदर वो जगह थी, कि मैं वापस आकर के आई ब्रॉट द पिक्चर्स, मेरे कॉलीग्स को मैंने दिखाया, और they were inspired to go back and go to India and visit that resort. So that's how beautiful it was. आपने कहा कि आपने आने के बाद में अपने कलीग्स को बताया। हमने हिंदुस्तान में क्या है, क्योंकि पूरी दुनिया का अभी भी भारत को लेकर के नोशन वही है कि हिंदुस्तान भिखारियों का और सफेरों का देश है, लेकिन एक बार जो वहां जा करके आ जाएगा ना, उसका नजरिया बदल जाएगा। हम बिल्कुल सहजता के साथ में इन विषयों को लोगों के साथ में जब बात करना शुरू करें, जहां बैठे वहां हिंदुस्तान की प्रगति की, हिंदुस्तान की कल्चरल हेरिटेज की, हिंदुस्तान की जो है टूरिज्म की जो है उस सब की चर्चा करना शुरू करें, हिंदुस्तान के डेवलपमेंट की चर्चा करना शुरू करें। इट क्रिएट्स एंड जनरेट्स क्यूरियोसिटी अबाउट आवर कंट्री, और क्यूरियोसिटी जब डेवलप होती है तो ऑटोमेटिकली लोग जाना शुरू होते हैं, हिंदुस्तान को जानने की कोशिश करते हैं। और अभी जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमको है वो ये है कि लोग हिंदुस्तान को जितना ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा हिंदुस्तान के प्रति नज़रिया लोगों का बदल